Now what is mean by heartbeat? Now what is mean by heartbeat? Then what is mean by stroke volume? Stroke volume. Stroke volume. What is meant by heart rate? Heart rate. And what is meant by cardiac output? And cardiac output. And cardiac output. Cardiac output. Heartbeat, stroke volume, heart rate, and cardiac output. Let's discuss one by one in detail. One by one in detail. Now, what is meant by heart rate? Sorry, what is meant by heartbeat? Now that one heartbeat consists of दोस्तों one contraction and one relaxation of heart, or one systole and one diastole of heart. That is called as one heartbeat. याद रखो. और फिर इसके बाद हम बात करेंगे first and second heart sound के. Now what is meant by one heartbeat? It consists of दोस्तों one contraction and one relaxation of heart. Means one atrial contraction and relaxation, and one ventricular contraction and relaxation. So one contraction, एक बार heart contract होगा और relax होगा. That is one heartbeat. That is one heartbeat दोस्तों. Now that one heartbeat, it consists of, in other language, it is represented by, or it consists of दोस्तों, it consists of one systole, contraction in systole, and one diastole. One systole and one diastole. That is heartbeat. And it is equivalent to cardiac cycle. Means that is one heartbeat occur in one cardiac cycle. ये एक line important है दोस्तों. That is one heartbeat occurs in each cardiac cycle, in one cardiac cycle. एक cardiac cycle में एक heartbeat. एक cardiac cycle में एक heartbeat. Okay, one heartbeat occur in one cardiac cycle. Now do you know that how many heartbeat occur per minute? Now duration of that one heartbeat or one cardiac cycle is 0.8 second. बघा कसं आहे लक्षात ठेवा. So यहाँ पे दोस्तों एक चीज है, that is the duration of one cardiac cycle is one cardiac cycle, or means duration of one heartbeat. कितना duration है? That is 0.8 second. Heartbeat कितना duration है? That is 0.8 second. Simple सी बात है. So how many cardiac cycle or heartbeat occur in 1 minute or 60 seconds? Can you answer me? Can you answer it for me बच्चों? Okay. Now please pay attention. अगर देखा जाए तो one cardiac cycle in 0.8 second. Simple सा logic है. Simple mathematics. One cardiac cycle. Okay, in it take 0.8 second में one cardiac cycle होती. So how many cardiac cycle will occur? MCQ. How many cardiac cycle will occur in 60 second or दोस्तों that is in 1 minute. तो आपको देखना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लेके जाओ, उधर 0.8 को नीचे लाओ. तो your answer is number of cardiac cycle per minute. Number of cardiac cycle per minute. Number of cardiac cycle per minute दोस्तों is equal to
कुछ इस तरीके से आएगा, ये इधर जाएगा। ओके 60/0.8, 60/0.8 और क्या हो जाएगा दोस्तों, मान लो ये बघा 8 56. ओके 8 5 56 खाली किती राहिले 8 ओके 40 समथिंग 72 पॉइंट समथिंग समथिंग येत राहील. आन्सर 72 एक्झॅक्ट नाहीये पण 72 असं येत राहील. एक्झॅक्ट नाही येणार. ठीक आहे 75 येईल हे नियर अबाउट. ठीक आहे 75. ठीक आहे करेक्ट 75 येत आहे. तर नंबर ऑफ कार्डियक सायकल पर मिनिट किती आहेत 75. नंबर ऑफ कार्डियक सायकल पर मिनिट किती आहेत 75. इफ वन कार्डियक सायकल टेक 0.8 सेकंड सो नंबर ऑफ कार्डियक सायकल 75. रेंज आहे 75 70 टू 75 बट ऍव्हरेज काय आन्सर इज 75. आणि मग नंबर ऑफ हार्टबीट पर मिनिट काय 75 पण ते ऍक्च्युअली ऍव्हरेज बघितलं तर 72 असतात. तर दैट इज कॉल्ड एज दोस्तों हार्ट बीट. इसे कहेंगे हम हार्ट बीट. और प्लीज पे अटेंशन दैट इज कॉल्ड एज अ हार्ट बीट. ओके ये इंपॉर्टेंट है. आता म्हणजे दिस इज नथिंग बट दोस्तों हार्ट रेट मीन्स हार्ट रेट और रिदम दो चीजें हैं यहाँ पे. रेट मीन्स हाउ मेनी टाइम कार्डियक साइकिल ऑकर पर मिनट. ये रेट कितना है कितने बार फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्डियक साइकिल पर मिनट इसे कहेंगे उसका रेट. फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्डियक साइकिल पर मिनट. हार्ट रेट क्या है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ट रेट दोस्तों. व्हाट इज हार्ट रेट. हार्ट रेट मींस ये क्या है कितने बार कार्डियक साइकिल होते हैं. नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल दैट आर ऑकरिंग इन द पर मिनट इसे कहते हैं दोस्तों हार्ट रेट. इसे कहेंगे दैट इज हार्ट रेट. ओके और ह्यूमन हार्ट रेट जो है हार्ट रेट इज दैट इज नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल number of cardiac cycles occurring per minute occurs in per minute. number of cardiac cycle occurs in 1 minute इसे कहते हैं दोस्तों हार्ट रेट. और वो कितने हैं एवरेज देखा जाए तो 72 है ह्यूमन बीइंग में. दैट इज ह्यूमन हार्ट रेट जो है ह्यूमन हार्ट रेट दैट इज इक्वल टू दोस्तों 72 बीट्स बोलते हैं उसे बीट्स पर मिनट क्योंकि वो हार्ट बीट है. कितने हार्ट बीट होंगे 72 हार्ट बीट्स पर मिनट है. 72 हार्ट बीट पर मिनट 72 हार्ट्स. नाउ इसकी अगर रेंज देखा जाए रेंज ऑफ हार्ट रेट इन केस ऑफ ह्यूमन इज इक्वल टू दोस्तों 60 to 100 बीट पर मिनट. कितना है 60 to 100 बीट पर मिनट. दिस इज द रेंज बीट्स पर मिनट. नाउ इसके बीच में होगा किसी का 72 हो सकता है किसी का 75 किसी का 80 किसी का 84 डिपेंडिंग. पर ये अडल्ट की रेंज है दोस्तों. रेंज ऑफ हार्ट रेट दैट इज 60 to 100 beat per minute. Now there are two terms. One is called as a bradycardia, another is called as a tachycardia. Brady means slow, tachy means fast. याद रखो ये दो शब्द इंपॉर्टेंट है. ब्रैडीकार्डिया और टैकीकार्डिया. कार्डियोलॉजिस्ट का पूरा लाइफ इन्हीं शब्दों से घिरा हुआ होता है. ब्रैडीकार्डिया ब्रैडी का मतलब है हमेशा याद रखो स्लो और दूसरा है दोस्तों दैट इज अ टैकीकार्डिया. टैकी का मतलब होता है फास्ट. टैकी का मतलब है फास्ट. ब्रैडीकार्डिया टैकीकार्डिया. नाउ ब्रैडीकार्डिया क्या है इफ हार्ट रेट इज लेस देन 60 बीट पर मिनट. ये क्वेश्चन थोड़ा बाहर का है पर आने के चांसेस है. ओके इफ
heart rate is, if heart rate, okay, if heart rate less than 60 beats per minute, उसे कहते हैं दोस्तों that patient is suffering from bradycardia. And अगर if heartbeat, okay, if heart rate दोस्तों is more than 100 beats per minute, now that is called as a tachycardia. That person is suffering from tachycardia. Okay, और tachycardia से कभी कभी देखो, अगर आप झगड़ा कर रहे हो या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो या फीवर हो रहा है, फीवर है आपको, एक्सरसाइज कर रहे हो, गुस्से में हो, तो दोस्तों हार्ट रेट बढ़ता है, टैकीकार्डिया। आपको खुद का हार्ट रेट खुद सुनाई देता है खुद को ही, उसे कहते हैं पाल्पिटेशन ऑफ हार्ट। खुद का हार्ट रेट खुद को सुनाई देना, दैट इज कॉल्ड दोस्तों पाल्पिटेशन ऑफ हार्ट। तो ये हो गया हार्ट रेट। मैंने हार्ट बीट और हार्ट रेट के बारे में बात की, दोनों एक ही है, पर हार्ट बीट दोस्तों एक इवेंट है, दैट इज अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, दैट इज हार्ट बीट। और हार्ट रेट एक नंबर है कि हाउ मेनी टाइम कार्डियक साइकिल ऑकर इन 1 मिनट। ये याद रखो, दो चीजें क्लियर है, इज दैट क्लियर हो, ये क्लियर है? ओके अगर ब्रैडीकार्डिया होता है तो पंप, हार्ट धीरे धीरे ब्लड पंप करेगा। सपोज मान लो ये है नॉर्मल हार्ट, ये है नॉर्मल हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, नॉर्मल हार्ट है। ओके तो ये होगा ब्रैडीकार्डिया। स्लोमो पता है ना, सब स्लोमो वीडियो निकालते हैं, तो दैट इज ब्रैडीकार्डिया। और ये हो गया टैकीकार्डिया, फास्ट टैकीकार्डिया। समझे आप? इज दैट क्लियर? नाउ बात करते दोस्तों, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? नाउ व्हाट इज मीन बाय स्ट्रोक वॉल्यूम, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज मीन बाय स्ट्रोक वॉल्यूम? वन स्ट्रोक अपन म्हणतो बघा, वन स्ट्रोक, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम? इसका मतलब क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब क्या है और कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या है? दोनों फर्क है, दोनों में डेफिनेशन सेम ही लगता है पर फर्क है। स्ट्रोक वॉल्यूम इज अ डिफरेंट थिंग एंड कार्डियक आउटपुट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके now what is mean by दोस्तों स्ट्रोक वॉल्यूम? which is 70 ml, कितना है इसका वैल्यू? 70 ml of blood, stroke volume. Now it is the amount of heart pumped by each ventricle per beat और per cardiac cycle और per stroke। हम बोलते हैं वन स्ट्रोक पेमेंट करते हैं, वन स्ट्रोक पेमेंट होता है, या फिर हम बोलते हैं वन स्ट्रोक मैं आपको ये दे दूंगा। तो it is amount of blood pumped by each ventricle per heartbeat और per cardiac cycle, इसे कहते हैं stroke volume। The amount of blood, the amount of blood pumped by, the amount of blood pumped by, यहाँ पे सेंटेंस है each ventricle, each ventricle per heartbeat और per cardiac cycle और in one cardiac cycle, simple, in one cardiac cycle, सिंपल सी बात है, और in one heartbeat, per heartbeat और per, और सिंपल सी बात है in one heartbeat, एक हार्टबीट में, ये कंफ्यूज नहीं करने वाला, प्लीज रिमेंबर द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन वन कार्डियक साइकिल, इसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और इसकी वैल्यू है दोस्तों दैट स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू दैट SV इज इक्वल टू 70 ml। अगर हार्ट एक बार ब्लड पंप करेगा, एक बार इन वन कार्डियक साइकिल, तो कितना पंप करता है? 70 ml। कितना ब्लड पंप करता है? 70 ml। ये हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम, ये हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम। नाउ मैंने लिखा था व्हाट इज मीन बाय हार्ट रेट, यहाँ पे ही हार्ट रेट कितना है? हार्ट रेट है 72 बीट पर मिनट। नाउ व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट? नाउ कार्डियक आउटपुट क्या है दोस्तों?
व्हाट इज मीन बाय CO? कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है, मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूँ कार्डियक आउटपुट की और फिर फॉर्मूला भी लिखेंगे। इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड, किसी को पता है कार्डियक आउटपुट? ठीक है, ओके हाँ ना, बीपी का और हार्ट रेट का देखते हैं। नाउ कार्डियक आउटपुट मींस इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, इसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड, एक मिनट में ब्लड कितना बाहर जाने वाला है, दैट इज कार्डियक आउटपुट बाय ईच वेंट्रिकल। द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by, the amount of blood pumped by each ventricle, amount of blood pumped by each ventricle, okay, per minute, that is called दोस्तों कार्डियक आउटपुट। इसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। एक मिनट में अपना हार्ट या फिर हार्ट का एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर पाता है, इसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। सो एक कार्डियक साइकिल में 70 ml करता है, तो एक मिनट में कितना करता होगा दोस्तों? एक कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू 1 हार्ट रेट, ओके, रेंज ऑफ हार्ट रेट। सो ह्यूमन हार्ट, मैंने कहा है नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल ऑकर इन 1 मिनट, इसे कहेंगे 1 हार्ट रेट, दैट इज हार्ट रेट, नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल ऑकर इन 1 मिनट, दैट इज कॉल्ड दोस्तों हार्ट रेट। तो यहाँ पे एक चीज हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, व्हाट इज मीन बाय कार्डियक आउटपुट। सो ये जो कार्डियक आउटपुट है इसका फॉर्मूला है दोस्तों, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू, याद रखो, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू दोस्तों दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट रेट, इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट रेट, फिनिश। क्योंकि कार्डियक आउटपुट क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट पर मिनट। नाउ फोकस ऑन दिस टेल वर्ड, per minute. Now what is stroke volume? It is the amount of blood pumped by each ventricle in one cardiac cycle। तो एक मिनट में कितने कार्डियक साइकिल है? 72, इसलिए हार्ट रेट हो गया 72। वॉल्यूम कुछ इस तरीके से आएगी दोस्तों, दैट इज आंसर। स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 ml, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 ml, और हार्ट रेट कितना है एक मिनट में? दैट इज 72। और दोस्तों ये है CO, कार्डियक आउटपुट की वैल्यू, दिस इज CO कार्डियक आउटपुट, एंड इट विल बी इक्वल टू दैट इज 5440 ml, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम ml में है, या फिर अप्रोक्सीमेटली 5 liters, and the amount of blood present in human body is also same, 5 liters. So cardiac output is equal to the amount of blood present in human body. जितना ब्लड है एक बार वो एक मिनट में हार्ट से गुजरता ही है, दैट इज कॉल्ड द कार्डियक आउटपुट। एक मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है हमारा हार्ट, 5 लीटर। 5 लीटर का कैन देख लो, ऑयल का कैन होगा आपके घर में 5 लीटर वाला, 5 लीटर का कैन तो सबको पता है कितना है। तो एक मिनट में हार्ट बिना रुके बिना थके हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए पर मिनट ओके कितना ब्लड पंप कर रहा है? अभी 5 लीटर्स। जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से कितना ब्लड पंप किया होगा? ओके, सपोज मैं आधा घंटा पढ़ा रहा हूं, ओके, तो कितना ब्लड पंप किया होगा? सो ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक है, और इसके ऊपर पिछले 2-3 सालों से नीट 2019-2020 या कार्डियक आउटपुट पर प्रश्न येत आहेत, ते घुमून फिरून प्रश्न विचारतात कार्डियक आउटपुट पर। ये हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा? तो ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, ओके। इसके ऊपर क्वेश्चन है, समझते? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर हो? यस और नो बोलो, इज दैट क्लियर हो? ओके, ठीक है। ओके,
देख, पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, बात करते हैं उसके बारे में। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आया था। ओके, व्हाट would be the cardiac output of person, what would be the cardiac output of person if its heart rate, if his heart rate जो है, if his heart rate is 72, ओके, बीट्स पर मिनट होता है, ये मत भूलो कभी, इसका यूनिट बीट्स पर मिनट है, एंड stroke volume of 50 ml। बोलो आंसर बोलो। सेम ही है हार्ट बीट और कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल एक सीक्वेंस इक्विवेलेंट होते हैं। आंसर इज ओके, देखते हैं। वाह, श्रेय, वेदांश, आयुष, अजय, चैताली, श्रावण, सृष्टि, अभिजीत, वाह। नाउ फॉर्मूला क्या है हमारे पास? दैट इज कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मींस एसवी इनटू कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम एसवी इनटू दोस्तों दैट इज हार्ट रेट, या चार कहते हैं उसे, या चार हार्ट रेट। ये हमारे पास फॉर्मूला है। नाउ स्ट्रोक वॉल्यूम तो फिक्स है, दैट इज, ये कभी चेंज होती है, और अभी ये 70 ml है। ओके, और हमारे पास हार्ट रेट दिया है, दैट इज कितना है? स्ट्रोक वॉल्यूम, सॉरी, स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज होती है, मैं बोला ना, दैट इज 50 ml है, और हार्ट रेट है दैट इज 72। तो कितना हो जाएगा? 3600। ओके, इसका मल्टीप्लीकेशन करो, कितना हो जाएगा दोस्तों? दैट इज 3600 ml ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट पर मिनट है, पर मिनट, याद रखो। तो सपोज मान लो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गई तो कार्डियक आउटपुट कम होता है। इवन हार्ट रेट अगर कम होता है तो फिर भी कार्डियक आउटपुट कम होता है। ओके, ये ब्रैडीकार्डिया नहीं है, हार्ट रेट बराबर है 72 पर स्ट्रोक वॉल्यूम कम है। ओके, वेंट्रिकुलर जो एबिलिटी है वेंट्रिकल की ब्लड पंप करने की इन ईच कार्डियक साइकिल, वो 70 ml है, पर उतना नहीं हो रहा है, वो 50 ml ही पर पंप कर पा रहा है। मींस वेंट्रिकल उसके 70% या फिर मान लो एक 60% फोर्स से ही काम कर रहा है, या हार्ट फेलियर की वजह से ऐसा हो सकता है। तो ये कार्डियक आउटपुट बढ़ता भी है और कम भी होता है। अगर कार्डियक आउटपुट जो एथलीट है हमारे, इनमें हम कार्डियक आउटपुट ज्यादा होता है दोस्तों कंपेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। एथलीट में कार्डियक आउटपुट ज्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ओके, ओके, चलो। So this is the basic concept of cardiac output. This is the basic concept of दोस्तों cardiac output, हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। ये आपको पता होना चाहिए, एंड डिफरेंस भी पता होना चाहिए
व्हाट इज मीन बाय दोस्तों स्ट्रोक वॉल्यूम एंड व्हाट इज मीन बाय कार्डियक आउटपुट। ठीक है, ये जो कार्डियक आउटपुट है दोस्तों ये इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। और ये जो कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट इज दोस्तों इज मच हायर इन एथलेट। जो एथलेट है, जैसे कि जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं रनिंग में, इसमें एथलेट्स, इट इज मच हायर इन एथलेट्स देन द नॉर्मल ह्यूमन, देन द नॉर्मल और ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। ये भी याद रखो, उनमें ज्यादा होगा ये कार्डियक आउटपुट। ये क्लियर है। ये स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर हार्ट रेट चेंज करेंगे और पूछेंगे कि कार्डियक आउटपुट क्या है, ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? ओके, ट्रूमन्स मध्ये हे सगळं दिलेलं आहे, ट्रूमन्स मध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. ओके, नाउ दोस्तों बात करते कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ट साउंड. हार्ट साउंड नाउ मेनली वैसे तो 4 हार्ट साउंड होते हैं, पर 2 हार्ट साउंड can be heard with the help of stethoscope, an instrument that is used to दोस्तों to hear the heart sound. उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप, याद रखो, उसे कहेंगे स्टेथोस्कोप. हार्ट साउंड that is also these are heart sounds. These are two prominent means जो easily सुनाई देते हैं, two prominent sounds. These are the two prominent sound. Okay, occurs during each cardiac cycle. During each cardiac cycle. Okay, hard sound कितने दोस्तों? 2. These are two prominent sound occurs during each cardiac cycle. Now hard sound are heard through. hard sound ये बहुत बढ़िया फीलिंग है, और दोस्तों heard through an instrument. एक इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों, गहना है इंस्ट्रूमेंट, और उसका नाम है दैट इज स्टेथोस्कोप. ओके, स्टेथोस्कोप. नाउ प्लीज पे अटेंशन. जब हम स्टेथोस्कोप लेते हैं तो हम हमारा साउंड, हार्ट साउंड सुनते हैं. पहली बार माइक्रोटोन का स्टेथोस्कोप लेते हैं, और वही लेना है माइक्रोटोन का ही, क्योंकि लिटमन का एक स्टेथो है दोस्तों जो 10,000 से ज्यादा महंगा होता है. 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 80,000, 1,00,000 से भी ज्यादा महंगा है कुछ लिटमन. तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, पर आप एमबीबीएस के आपके करियर में आपके पास अगर बस माइक्रोटोन का एक अच्छा स्टेथोस्कोप है, अगर ये भी रहा स्टेथो रहा तो भी चलेगा दोस्तों. तो ये जो है पहले क्या करते थे, पहले जो पपया वगैरह उसके जो क्या बोलते हैं पेटियोल है, दैट आर यूज्ड एज अ स्टेथोस्कोप. ओके, स्टेथोस्कोप एट द टाइम ऑफ सुश्रुत एंड ऑल दैट. याद रखो, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हार्ट साउंड मला ते इमेज दाखवायचं तुम्हाला, असायला पाहिजे. नाही येत इमेज. तर जे पपया वगैरे तसे जे देठ असतात त्याच्या पानाचे असे मोठाले, ते देठ लावून ते आवाज ऐकायचे. ओके, असो. ये स्टेथो है दोस्तों. ओके, ये इंस्ट्रूमेंट है, और ये देखो लिटमन का स्टेथो है.
ये यल जो है, ओके, ये यल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ओके, जो आपकी आन बान शान बढ़ाता है। ओके, इसे ईयरबड कहते हैं और यहाँ पे ड्रम होता है दोस्तों। ये कहाँ रखना है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये हार्ट के, ये चेस्ट के ऊपर 4 एरियाज होते हैं, वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो वहां वहीं पे रखा जाता है। बहुत सारे लोग बोलते होंगे सर डॉक्टर पीछे भी लगाते हैं। पीछे इसलिए लगाते, पीछे थोड़ी हार्ट है, हमारा हार्ट तो वेंट्रल साइड पे, पीछे क्या है, पीछे के साइड पे दे आर ट्राइंग टू हर्ड योर रेस्पिरेटरी साउंड। जो आपकी ईयर एंट्री है, इज इट इक्वल और नॉट, ये सुनना चाहते हैं। ईयर एंट्री, अगर निमोनिया हुआ है या फिर लंग्स का कोई इन्फेक्शन हुआ है, राइट लंग में है, तो राइट लंग की एयर एंट्री कम हो जाएगी लेफ्ट लंग से। तो एयर एंट्री पूरे लंग्स में आ रही क्या नहीं, हवा का साउंड जो है वो भी सुनते हो। एंड कभी कभी कुछ डॉक्टर दोस्तों पेट के ऊपर भी स्टेथो लगाते हैं। व्हेन वी कंप्लेन ऑफ पेन इन एब्डोमेन, तो वहां पे भी वो स्टेथो लगाते हैं, क्योंकि वहां पे भी एक साउंड आता है दोस्तों, क्रिपलिंग टाइप जैसा साउंड आता है, क्योंकि इंटेस्टाइनल मूवमेंट होती रहती है, पेरिस्टालसिस चालू रहता है तो उसका साउंड आता है। अगर पेरिस्टालसिस बंद है तो साउंड भी बंद होता है। इसलिए कुछ डॉक्टर पेट के ऊपर भी स्टेथो लगाते हैं, पर मेन इसका काम है टू हर्ड द हार्ड साउंड। यह स्टेथोस्कोप दोस्तों, ओके, जब हम गले में डालते हैं ना तो एक अलग ही फीलिंग आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ ये जो 2 हार्ड साउंड है दोस्तों, उसके ओके कोई बात नहीं। नाउ 2 हार्ड साउंड होते हैं, दैट इज फर्स्ट हार्ड साउंड एंड सेकंड हार्ड साउंड। याद रखो, द फर्स्ट हार्ड साउंड एंड सेकंड हार्ड साउंड। नाउ लेट डिस्कस व्हाट इज मीन बाय फर्स्ट हार्ड साउंड एंड सेकंड हार्ड साउंड। फर्स्ट हार्ड साउंड and second hard sound and second hard sound now ये जो फर्स्ट हार्ड साउंड है ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू दोस्तों क्लोजर ऑफ AV wall, that is a tricuspid and bicuspid wall. Okay, it is produced due to closure of that is tricuspid and bicuspid wall. Tricuspid and bicuspid wall. It is produced due to closure of tricuspid and bicuspid wall. इसे कहते हैं दोस्तों that is फर्स्ट हार्ड साउंड। और ये जो सेकंड हार्ड साउंड है, ओके, तो इसके बारे में फर्स्ट हार्ड साउंड के बारे में बोलता हूं पहले। तो ये जो है फर्स्ट हार्ड साउंड नंबर 1 दोस्तों, ये जो होता है इट इज लो पिच साउंड है। लो पिच और हाई पिच का मैं समझाता हूं मतलब आपको। लो पिच मीन्स जरा अमिताभ बच्चन वाला साउंड, सनी देओल जो है उसका साउंड, ये 2.5 किलो का हाथ है, जिसके ऊपर पड़ जाता है आदमी वच नहीं उठ जाता है काथ्या, असा घोगरा आवाज, त्याला म्हणायचं लो पिच साऊंड. आणि एखाद्या लेडीजचा आवाज असतो ना, त्याला म्हणायचं हाय पिच साऊंड. ठीक है ना, ते कोरोना वाली लेडी बोलते बघा, ठीक है, बहुत जरूरी काम है तभी घर से बाहर निकले, दैट इज कॉल्ड एज अ हाई पिच साउंड. सो ये जो फर्स्ट हार्ड साउंड है दोस्तों, ये लो पिच साउंड है, ओके, लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, लाभ डाब ऐसा है, ओके, लॉन्ग ड्यूरेशन है, लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। और इससे दोस्तों इट इज लब और डब, इट इज आइदर लब, कोई लोग इसे LUB लिखते हैं, कोई लोग इसे LUBB लिखते हैं, लब डब। एक्चुअली साउंड ऐसा है, लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब। ड्यूरेशन ज्यादा है। और एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इट इज लेस लाउडर। क्या बात करें सर, हाँ, लेस लाउडर है, लाउडर नहीं है। लेस लाउडर कम लाउडर है। इसके एग्जैक्ट अपोजिट सेकंड हार्ड साउंड है। सेकंड हार्ड साउंड दोस्तों, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ that is semi-lunar wall.
that is pulmonary and aortic wall, semilunar wall. It is produced due to closure of semilunar wall. Now दोस्तों ये high pitch sound है, it is high pitch sound है. ओके मींस पिच का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, पर सेकंड इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. लेडीज आवाज जैसा कि मान लो ये हाई पिच होता है, या फिर एक मच्छर का आवाज, दैट इज हाई पिच साउंड. एक मच्छर का आवाज, उसके जो वाइब्रेशन है उसके विंग के, दैट वाइब्रेशन का जो आवाज होता है उसके विंग्स के, वो हाई पिच होता है, बहुत ही हाई पिच है. तो इसे कहते हैं दोस्तों हाई पिच साउंड है. एमसीक्यू, कौन? सेकंड हार्ट साउंड. फिर ये कैसा, इसका ड्यूरेशन शॉर्ट है, जैसे लब डब, लब डब, लब डब. सो इट हैज शॉर्ट ड्यूरेशन, इट हैज दोस्तों शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन. और ये जो है, लेकिन ये जो है दोस्तों इट इज लाउडर होता है. लब डब ये कैसा है? लाउडर देन फर्स्ट हार्ट साउंड, देन सॉरी इसका नाम है दोस्तों इट इज डब, इसे बोला जाता है डब. एंड इट इज लेस लाउडर नहीं तो कैसा है? लाउडर है, लाउडर देन द फर्स्ट हार्ट साउंड, देन द फर्स्ट हार्ट साउंड. एमसीक्यू, फर्स्ट हार्ट साउंड से लाउडर है. कौन? सेकंड हार्ट साउंड. कौन? सेकंड हार्ट साउंड. ओके, लब डब, लब डब, लब डब. ये बॉलीवुड वालों ने इसको कैसे धक धक बना दिया पता नहीं मुझे. बॉलीवुड वालों को ये धक धक सुनाई देता है. ओके, धक धक, पर होता है ये लब डब. लब डब करने लगा, ये अगर ऐसा गाना हो तो देखो कैसा होता. तो मोरा जियारा डरने लगा, सैया बैया छोड़ना, कच्ची कलियां तोड़ना, सैया बैया छोड़ना, कच्ची कलियां तोड़ना, लब डब करने लगा. माधुरी अनिल कुमार बेटा मूवी का नाम है. तो याद कैसे रखेंगे? जब भी कोई गाना सुनेंगे दोस्तों रिलेटेड टू हार्ट बीट, ओके, मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी ना, ऑल दैट, ऐसा डायलॉग सुनेंगे. ये जो बोरिंग हिंदी पिक्चर का डायलॉग है, ओके, कितने सारे हैं, मेरा दिल धड़कता है तेरे लिए, तेरा धड़कता है मेरे लिए, ऑल दैट. तो हमको ये हार्ट साउंड का निमोनिक्स पता होना चाहिए, और वो है दोस्तों 4L. नाउ 4L क्या है? 4L मैं आपको बताता हूं 4L क्या है. ये नारियल नहीं, ये 4L है. पहला यल मींस दोस्तों लब, जो कि फर्स्ट हार्ट साउंड है, लब. दूसरा लॉन्ग ड्यूरेशन है, इसका दूसरा क्या है दोस्तों? लब, जो लो पिच है, ऐसा है, लो पिच है. तीसरा क्या है? लॉन्ग ड्यूरेशन है, लॉन्ग ड्यूरेशन है इसका. और 4 नंबर लेस लाउडर है. क्या बात करें सर? हाँ, लेस लाउडर है. लाउडर भी तो ले सकते थे, नहीं, लेस लाउडर है. लब जो है हमारा जो साउंड है लब, वो लो पिच है, लॉन्ग ड्यूरेशन और लेस लाउडर है. याद रखो 4L ऑफ हार्ट साउंड. फिनिश. एंड दैट इज कॉज्ड ड्यू टू दोस्तों, हमेशा याद रखो, हार्ट साउंड जो क्लोज होता है, हार्ड साउंड जो होता है दोस्तों, हमेशा याद रखो, इट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ. मैंने उस दिन भी आपको बताया था, कोई भी साउंड ले लो, इट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ दोस्तों क्लोजर ऑफ. ओके, एनी साउंड इट इज बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ, ओके, वॉल, नॉट द ओपनिंग. किसकी वजह से? क्लोजर. सीधे देखा आपने, ओपन किया है क्या साउंड? नहीं, क्लोज. देखा आपने. सो एनी साउंड इट इज बिकॉज ऑफ जस्ट क्लोजर ऑफ दॅट वॉल. हमेशा याद रखो. घरामध्ये असं एखाद्या वेळेस दरवाजा लागला जोराने की समजायचं ये हार्ड साउंड है, क्लोजर ऑफ. और अपना निमोनिक्स, अपना एक एमसीक्यू वहां पे रिवाइज करने का, हार्ड साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ वॉल. ओके, मान लो कुछ, मान लो दोस्तों कुछ हो गया, आपके और आपका जो सिबलिंग है, जो आपकी दीदी है, छोटी या बड़ी जो भी है, आप और उसमें झगड़े हो गए, आपके अलग अलग रूम है, वो चली गई, झगड़े हो गए हॉल में, वो अपने रूम में चली गई, तो उसने फर्स्ट उसका दरवाजा लगा दिया जोर से, फर्स्ट हार्ट साउंड आया है लब. फिर आप भी चले गए आपके रूम में और आपने भी दरवाजा लगा दिया, साउंड आ गया डब.
तो ये लैब डब है दोस्तों, घर में ये होता रहता है। ओके, ऐसा हुआ है आपके पास, आपके साथ ये हुआ है दोस्तों। यल फॉर लब, लॉन्गर एंड लो पिच। ओके, ट्विन फाइट होता है ना, ट्विन फाइट होता है ऐसा। ओके, तो दोनों दरवाजे के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं, और जब दरवाजा जोर से लगता है तो साउंड आता है। ओपन करने से साउंड नहीं आता है, ओपन करने से साउंड नहीं आता है। ओपन करने से साउंड आता है कि नहीं? अगर हम गुस्से में हैं, हम प्यार में हैं, हम मस्ती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बायो दिमाग में होना चाहिए। अगर नीड क्रैक करनी है तो बायो हमेशा दिमाग में होना चाहिए। ओके ओके, बायो हमेशा दिमाग में होना चाहिए, याद रखो। कुछ भी कर रहे हो अगर, कुछ भी, तब जाके 360 आउट ऑफ 360 मार्क। और बायो में 360 आउट ऑफ 360 मतलब एम्स का एडमिशन कंफर्म होने के चांसेस है। एम्स का एडमिशन कंफर्म होने के चांसेस है अगर बायो में 360 आउट ऑफ 360 है। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो दिस इज अबाउट दोस्तों द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड साउंड। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड साउंड, याद रखो। आप सुनो हार्ड साउंड कैसा होता है, ठीक है। और ये स्टेथोस्कोप जब लाओगे दोस्तों, तो फर्स्ट टाइम तो क्या होता है कि खुद का ही हार्ट सुन लेता है, हार्ड साउंड हम सुनते हैं खुद का ही। और फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है कि कहाँ पे स्टेथो रखना है। इतनी छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती है। फर्स्ट साउंड कहाँ पे सुनना है, अगर सेकंड साउंड अच्छी तरह से सुनना है तो क्या है दोस्तों, नाउ देयर इज वन कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ट मर्मर। और एक कॉन्सेप्ट दोस्तों हार्ट मर्मर, दैट इज एबनॉर्मल हार्ट साउंड होता है, हार्ट मर्मर होता है, दैट इज एबनॉर्मल हार्ट साउंड, याद रखो। इट इज एबनॉर्मल हार्ट साउंड ड्यू टू द मीन्स काय म्हणता है नॉन और इन जो वॉल्स होते हैं हार्ट के, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और या फिर सेमिलुनर वॉल, ये प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, इसीलिए इनसफिशिएंट वर्किंग ऑफ दैट वॉल प्रोड्यूसेस दोस्तों कुछ एबनॉर्मल साउंड, उसे कहते हैं हार्ट मर्मर। मैं जब सेकेंड ईयर में था तो मेडिसिन की पोस्टिंग चल रही थी। तो कैसा होता है जब पोस्टिंग होता है दोस्तों, ओपीडी में जाना पड़ता है। सर बोलते हैं आ जाओ ओपीडी में, 9 बजे हम ओपीडी में पहुंचते हैं। ऐसा नहीं कि 100 वाली पूरी बैच, तो उसे डिवाइड किया जाता है। मेडिकल साइंस बहुत अलग सब्जेक्ट है दोस्तों। उसको ग्रुप ग्रुप में 20 बच्चे होते हैं या फिर 15-20 बच्चे, उनको ही सिखाया जाता है ताकि पूरे लोगों को समझ में आए। तो हम गए लेक्चर ओपीडी में, देख रहे पेशेंट, सर कैसे पेशेंट को देखते, कैसे बात करते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करने का, देख के। और अगर कोई केस आती है तो सर बोलते ये देखो ये ऐसी केस है। तो एक केस आई उस दिन मरमर की, एक हार्ट का डिसीज है, उसे कहते हैं रोमैटिक फीवर। और ये रोमैटिक फीवर बच्चों में सपोज ये 7 या 5, 6, 7 का साल का है, 6-7 साल का तब होता है। और फिर बाद में जो हार्ट के वॉल होते हैं, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, माइट्रल वॉल, वो अफेक्ट हो जाते हैं। और उसकी वजह से उसका जो हार्ट का साउंड है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो जाते, इसलिए हार्ट मरमर आती है दोस्तों। सो जो हार्ट मरमर है, इट इज एन एबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हार्ट ड्यू टू द दोस्तों क्या म्हणता है डिसीज ऑफ द वॉल्स ऑफ द हार्ट। ये होता है हार्ट मरमर। इट इज एन एबनॉर्मल साउंड, ये नॉर्मल साउंड नहीं है, इट इज एबनॉर्मल हार्ट साउंड, इट इज एबनॉर्मल हार्ट साउंड। ओके, साउंड्स मरमर होते हैं, इट इज एन एबनॉर्मल हार्ट साउंड। ओके, produced due to disease of walls of the heart, disease of walls के डिसीज होते हैं, walls of heart। बहुत सारे डिसीज है, एमएस है, माइट्रल स्टेनोसिस, स्टेनोसिस मींस वो एकदम नैरो बन गया। ओके, माइट्रल रिगर्जिटेशन होता है, एमआर माइट्रल स्टेनोसिस, एएस मींस एओर्टिक स्टेनोसिस, एआर में एओर्टिक रिगर्जिटेशन। ये अलग अलग डिसीज है। अब जब सेकंड ईयर में जाओगे एमबीबीएस में, तो तब आपको इनकी डेफिनेशन समझ में आएगी, सिर्फ डेफिनेशन, और पेशेंट देखने को मिलेंगे अगर अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाते हो तो। सो दोस्तों ये है, जैसे फिर कैसा होता है लैबडप ऐसा होता है, लैबडप। ये शू जो आवाज है बैकवर्ड फ्लो होता है, इसकी वजह से होता है, हार्ट ब्लड का बैकवर्ड फ्लो होता है, इसकी वजह से ऐसा साउंड होता है हार्ट मरमर। याद रखो, अलग अलग टाइप के मरमर है। और ये पूरे मरमर समझने के लिए और ये पहचानने के लिए आपको एमडी मेडिसिन होना पड़ेगा। और ये मरमर एक ही बार स्टेथो लगाया, और अगर मुझे मरमर समझ में आ रही है ये किस टाइप की मरमर है, इसके लिए आपको कार्डियोलॉजिस्ट होना पड़ेगा।
इसके लिए आपको डीएम करना पड़ेगा या फिर एमडी मेडिसिन रह के बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस है मेडिकल साइंस। आप भी अगर आपके कोई भी रिलेटिव डॉक्टर है तो बोल लो, उनकी बातें सुनो, एक दूसरे से बोलते हैं सर कैसे चल रही है प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है। बहुत बार चीजें करनी पड़ती तब जाके आप परफेक्ट होते हो। कोई भी सर्जन एक दिन में थ्योरी पढ़ ली, पूरी रट ली उसने लाइब्रेरी में बैठ के, या फिर एक बार वीडियो देख लिया और अभी वैसे वैसे सर्जरी नहीं करेगा। ये प्रैक्टिस है, जितना ज्यादा करेगा उतना ज्यादा वो एक्सपर्ट हो जाएगा। ये मेडिकल साइंस है। ओके, सब लिखा हुआ है, कुछ नया करने की जरूरत नहीं। सर्जरी कैसी करनी है एंड ऑल दैट सब लिखा हुआ है बुक्स में, सिर्फ उसको अच्छी तरह से सीखना है और फॉलो करना है, दैट इज बस, यही है मेडिकल साइंस। सो यह है हार्ट मर्मर। हमने हार्ट साउंड सीखा, आज हमने हार्ट बीट मींस these are the rhythmic contraction and relaxation of heart, उसे कहते हैं हार्ट बीट, दैट इज इक्विवेलेंट टू कार्डियक साइकिल। दोनों एक ही है, पर कार्डियक साइकिल एक इवेंट जैसे होते हैं, सिक्वेंशियल इवेंट होते हैं, which are repeated, which are cyclically repeated, उसे कहते हैं कार्डियक साइकिल। पर दोनों का मतलब एक ही है, हार्ट बीट और कार्डियक साइकिल। बट डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन हार्ट बीट एंड हार्ट रेट। तो हार्ट बीट बोला मैंने, कार्डियक साइकिल बोला। नाउ व्हाट इज मीन बाय दोस्तों हार्ट रेट? हार्ट रेट क्या होता है? So it is the number of cardiac cycle that are occurring per minute. ये होता है हार्ट रेट। So total duration of one cardiac cycle is 0.8 सेकंड। अगर 0.8 सेकंड में एक कार्डियक साइकिल होती है तो 60 सेकंड में कितने? नियर अबाउट दोस्तों 72 हो गए, नियर अबाउट, एवरेज वैल्यू है 72। रेंज होता है उसे कहते हैं हार्ट रेट, रेंज है 60 to 100। बिलो 60 ब्रैडीकार्डिया, ब्रैडी का मतलब लिखो स्लो, अबो 100 टैकीकार्डिया, टैकी का मतलब लिखो फास्ट। नाउ फिर हमने देखा स्ट्रोक वॉल्यूम। नाउ ड्यूरिंग ईच कॉन्ट्रैक्शन दैट हार्ट रेट ventricle pump out some amount of value of blood, some volume of blood is pumped by ventricle in each cardiac cycle, उसे कहते हैं दोस्तों स्ट्रोक वॉल्यूम। इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by each ventricle in one cardiac cycle और 1 per beat, उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, और वो होता है 70 ml। तो our cardiac output is the amount of blood pumped by heart, or it is the amount of blood pumped by each ventricle per minute, इसे कहते हैं cardiac output। और फॉर्मूला है SV into HR। तो SV 70 ml, HR 72। तो कार्डियक आउटपुट दोस्तों 5040 ml है और 5 लीटर है, और उतना ही ब्लड होता है हमारे बॉडी में। सो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द बॉडी। फिनिश। ये चीज है, ये चीज है, ठीक है। होती है बेटा, गलतियां भी होती है,